तीर्थ पर साना एक बार फिर वायरल हो रहा है और इस बार थिंग्स आर सीरियस। एक लड़की ने अपनी चैट्स और वॉइस रिकॉर्डिंग शेयर की हैं जिसमें तीर्थ का बिहेवियर काफी डिस्टर्बिंग है। सोशल मीडिया पे सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट करने लायक है या फिर नहीं। चलिए पूरा मैटर समझते हैं। एक लड़की ने पब्लिकली तीर्थ के साथ अपनी चैट्स और एक रिकॉर्डिंग शेयर की एक मीम पेज के जरिए, जिसमें उसका बिहेवियर काफी प्रॉब्लमैटिक लग रहा है। जो मैसेजेस सामने आए हैं उनसे ये लगता है कि तीर्थ किसी भी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं करता। So here are some recordings between Teerth and that girl, and Teerth says, "Yo, so how long have you been using Hinge for?" She says, "I'm a little while, enjoying the thrill of meeting new people." To Teerth says, "Us bro, it's fun meeting new people." He says, "I agree bro. Wese do you have any interesting hobbies?" Teerth says, "To let you know, I'm not an interesting person, but when I do get time, I enjoy playing Valo with my boys. Valorant is an online game." She says, "Cool." Teerth says, "What about you?" She says, "I'm into reading books." He says, "Have you heard about Lucifer Was Innocent?" Lucifer Was Innocent is a book of Teerth. She says, "Not really." He asks her, "Does she like fantasy books?" She agrees. Teerth says, "You must be into dark romance then." She says, "Why?" Then he asks, "Just so I can know you better." She says, "To be honest, a lot." After this, Teerth asks her a very weird question, like, "Are you a virgin?" अब इस पॉइंट पे वो थोड़ा weird out हो गई थी और उसने लिखा obviously. Then he asks, "Do you crave for?" To which she says, "Weirdo," because obviously what else do you expect from her? Then Teerth says, "I thought you would love talking dirty." I mean, look at the audacity of this man. इस पॉइंट तक वो लड़की completely creep out हो गई थी और उसने बोला, "Bro, that's so disgusting." फिर वो उससे पूछता है, "Don't you?" वो कहती है, "I mean, I do, but not with someone whom I don't even know very well." And he says, "I am an open book." And she says, "What are your intentions? Be honest." Says, "Just want to see the other side of you." He says, "You are such a despot." He says, "Arey Baba, I was just asking." Then she says, "I don't see you that way, bhai. It's all right, and I totally understand that, but it's not my fault. तुम हो ही इतनी hot. Sorry, I can't control myself." Which she says, "Bro, what the fuck, Teerth? Are you all right? You should just have some time to yourself. Can talk later." तो वो reply करता है, "I wanna kiss your lips bad." मैं ये chats पढ़ के ही embarrass हो रही हूँ. I can't tell you how I feel right now. लड़की ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल हो गई और उसने बोला, "अरे तुम क्या बोले जा रहे हो?" "What are you looking for actually, Teerth?" Teerth says, "Can I see what your beautiful body looks like under those clothes? I mean, seriously." वो लड़की कहती है, "Teerth, is this you? You got hacked or what?" Because obviously वो believe नहीं कर पा रही थी कि Teerth उससे ऐसा कुछ बोलेगा. To which Teerth says, "No, shits are getting out of hand now. I wish you were here right now. I'm so disgusted कि मैं आगे की लाइंस पढ़ भी नहीं पा रही हूँ." कितना ट्रॉमेटिक रहा होगा उस लड़की के लिए, वी कैन ओनली इमेजिन। लास्ट में वो लड़की कहती है, "तीर्थ, इनफ इज इनफ, आई एम ब्लॉकिंग यू राइट नाउ." तीर्थ यहाँ पर ही नहीं रुका। जब उस लड़की ने उसको ब्लॉक करने की बात की तो उसने उसको अपनी न्यूड सेंड कर दी। जब मैंने ये पहली बार रीड किया, आई वाज सो शॉक्ड। लाइक ये सिर्फ एक फ्लर्टी चैट नहीं है बल्कि हरासमेंट। जब कोई लड़की अनकंफर्टेबल हो और फिर भी एक लड़का उसे फोर्सफुली ऐसी बातें करे तो ये हरासमेंट होता है। इसका मेंटल और इमोशनल इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है। एंजाइटी और स्ट्रेस। जब कोई इन्फ्लुएंसर या पावरफुल इंसान ऐसे बिहेव करता है तो लड़की डरेगी कि वो इसे पब्लिक करे या फिर नहीं। गिल्ट और सेल्फ डाउट। कई लड़कियां सोचती हैं क्या मैंने ही कुछ गलत किया, जबकि असली प्रॉब्लम उनके बिहेवियर में नहीं बल्कि उस इंसान की गलत सोच में होती है। सेफ्टी का डर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पास रीच होती है। अगर एक लड़की उनका सच एक्सपोज करे ना तो उनके फॉलोअर उस लड़की को ट्रोल कर सकते हैं। जब भी ऐसे स्कैंडल्स होते हैं तो एक और बड़ा इशू सामने आता है, ऑल मेन आर दी सेम मेंटालिटी। ये सच है कि कई लड़के ऐसे नहीं होते, लेकिन जब एक बड़ा इन्फ्लुएंसर ऐसा करता है तो सब लड़कों की इमेज खराब होती है। ऐसे लोगों की वजह से जेन्युइनली अच्छे लड़के भी सस्पेक्ट बन जाते हैं। हर लड़का हरासर नहीं होता, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से हरासमेंट को सीरियसली लेना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से जेन्युइन लड़के भी पोटेंशियल थ्रेट बन जाते हैं, जो कि अनफेयर होता है। जब ये लड़की इतनी अनकंफर्टेबल हो गई, उसने डिसाइड किया कि ये सब एक्सपोज करेगी। उसने एक मीम पेज से कांटेक्ट किया और उनको सारी चैट्स फॉरवर्ड करी। मीम पेज ने ये चैट्स पोस्ट कर दी और ये बात धीरे धीरे सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी। तीर्थ ने जैसे ही देखा कि ये सब वायरल हो रहा है तो उसने मीम पेज को थ्रेटन किया। उसने चैट्स हटाने के लिए प्रेशराइज किया। इतना ही नहीं, उसने फोर्स किया कि मीम पेज प्राइवेट हो जाए ताकि नए लोग उसकी स्टोरी ना देख सकें। लेकिन जब ये सब के बाद भी चीजें वायरल हो रही थी तो उसने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर लिया। जब लोगों ने देखा कि उसने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर तो काफी लोग शॉक्ड भी नहीं थे, बिकॉज ये पहली बार नहीं है जब लोगों ने तीर्थ के बिहेवियर को क्वेश्चन किया।
जब उसने अपनी बुक लूसिफर इज इनोसेंट प्रमोट की थी तब भी उसका तरीका काफी प्रॉब्लमैटिक। उस वक्त भी लोग कंफ्यूज थे कि उसके इंटेंशंस क्या हैं। उसने क्रिटिसिज्म को कैजुअली डिसमिस किया बिना किसी अकाउंटेबिलिटी। उस टाइम काफी यूट्यूबर्स ने भी उसका रोस्ट किया। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह बन चुका है जहां लोग अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जब कोई पब्लिक फिगर अपनी पावर का मिसयूज करता है तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का इशू नहीं बल्कि एक बड़े प्रॉब्लम का पार्ट बन जाता है। जब एक फेमस पर्सनालिटी अपने फॉलोअर्स के डायरेक्टली इंगेज करती है तो फॉलोअर्स उसके वर्ड्स को कैजुअली नहीं लेते। एक ऐसे बंदे से मैसेज आना जो फेमस नेचुरली किसी को भी एक्साइटेड कर सकता, पर जब ये एक्साइटमेंट मैनिपुलेशन और हरासमेंट में बदल जाए तो ये अब्यूज ऑफ पावर। ऐसे केसेस सिर्फ एक लड़की या एक इंसान तक लिमिटेड नहीं होते। जब एक इन्फ्लुएंसर ऐसे बिहेव करता है तो लोग हर सोशल मीडिया पर्सनालिटी को डाउट करने लगते हैं। जो सच में अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी सफर कर। लड़कियों के लिए अनसेफ एनवायरनमेंट, ऑनलाइन हरासमेंट सिर्फ एक जोक नहीं। जब एक लड़की को बिना कंसेंट के ऐसे मैसेजेस मिलते हैं तो उसकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। ये सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है बल्कि एक ऐसा पैटर्न है जो लड़कियों के लिए अनसेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर। तीर्थ के एक्शंस मॉरली और लीगली दोनों तरह रॉन्ग है। हरासमेंट सिर्फ तब नहीं होता जब फिजिकल हो, ऑनलाइन भी हो सकता है। लॉज अगेंस्ट साइबर हरासमेंट एग्जिस्ट कर। आईपीसी सेक्शन 354A सेक्सुअल हरासमेंट और अनवेलकम बिहेवियर के अगेंस्ट एक्ट। आईटी एक्ट सेक्शन 67 ऑब्सीन कंटेंट भेजने पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। अगर लड़की लीगल एक्शन लेना चाहे तो उसके पास ऑप्शंस है। सोशल मीडिया हरासमेंट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर कोई फेमस हो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके एक्शंस इग्नोर कर दिए जाएं। आजकल लोग सिर्फ चुप नहीं रहते, वो बात रखते हैं और अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं। जो गलत है वो गलत है। लड़कियों की सेफ्टी सिर्फ ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन भी इंपॉर्टेंट है। किसी की मेंटल पीस डिस्टर्ब करना, मैनिपुलेट करना या फोर्सफुल बातें हरासमेंट होता है। फेम या इन्फ्लुएंस का मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक इंसान का इशू नहीं है बल्कि सोसाइटी का इशू है। अगर आज हम ऐसे बिहेवियर के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कल किसी और लड़की के साथ भी ऐसा। व्हाट इज योर ओपिनियन? क्या ये एक गलती थी या एक पैटर्न? कमेंट करके बताओ। थैंक